नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और मैं हूं मनीषा गुप्ता। और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे खाने के तेलों की, क्योंकि यहां पर काफी सारी खबरें निकल के आई हैं। टॉप मोस्ट यहां पर IVPA ने अपील की है कि सरकार खाने के तेल की पैकेजिंग को लेकर स्टैंडर्डाइज करे। ऐसा ना होने से लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। क्यों जरूरत पड़ी है ये करने की अपील, और अलग अलग पैकेजिंग से किसे फायदा और ग्राहकों को कितना नुकसान है, इसी पर बात करने के लिए और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई हैं। सुधाकर जी नमस्कार। और सबसे पहले इसी पर बात करेंगे, आप रिसेंटली दिल्ली में थे, आप मिनिस्टर्स को भी मिल रहे थे, हमने वो पिक्चर्स भी देखी। किस तरह की आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है और किस तरह का फीडबैक है? Yes. I think we definitely went there, had all these meetings. एक तो 2-3 इश्यूज के बारे में जनरली जो इंडस्ट्री के सामने थोड़ा कठिनाइयां थे। नंबर 1 इज द सैफ्टा इम्पोर्ट्स। ये जो इंडिया ने जब से ड्यूटी बढ़ाया है इन सितंबर लास्ट ईयर, it triggered an zero duty imports from the SAFTA countries like Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. So, but Nepal has become, Bangladesh at the moment is not exporting, but Sri Lanka became a big issue. And already about 78 to 1 lakh tons started coming in at zero duty, whereas the Indian refineries were paying 27% duty. So this has been taken up at appropriate levels in various governments. While it appears that 1 lakh tons is not much in a monthly basis, in commodity markets, a small volume can cause a lot of, that becomes the benchmark, that becomes the price maker. And also in eastern zone where it is actually coming in east like Haldia and Bajbaj and the eastern and northern portions, the entire soya oil that's coming in per month is about, let's say 2 lakh tons. Out of which 1 lakh ton is almost like 50%. So if the 50% of oil in this zone is coming at zero duty, and other Indian refineries are importing at 27.5%, or if they are importing refined oils at 35%, so that created a very big problem. So we are very happy that everybody received this problem with positive note, including the ministers. They were well receiving the IVPA delegation. So we made a pitch for this. Hopefully, this will be found out, some resolution will be found out for this. The second issue that you have mentioned is about legal metrology, of course. I don't remember about one. The legal metrology has become standardized products. There were about 13-14 products in chapter 16. They've made everything non-standard. So while it suited certain products like wheat, rice, milk, probably biscuits, and so many other items, we were trying to always argue that in edible oil it is a problem for two reasons. Number one, it is very difficult to differentiate easily. There's not much of a brand value. It's a commodity, essential commodity. And number two is that there was a plethora of brands in the shelves. Like you will find 700 grams, 740 grams, 800 grams, or even 900 grams packages, which according to unit selling price should be okay. If consumer is going to see per gram price, then it was intended that over a period of time things would settle. We also believed that matter will get settled into a somewhat a normalcy. But it's been 1.5 years. There has been a plethora of brands leading to confusion. And who benefits actually is that the ultimate end retailer, because manufacturers are producing as per the grammage only, but the retailer can pass it on a lower weightage gram at a higher weightage gram price, by looking at consumers who don't really have the wherewithal and the bandwidth to see the small print of unit selling price. So I think this is also an issue that we have taken up. Hopefully, Sudhakar ji, just we know that in government circle they agreed to look at this problem as separate from other products. So hopefully something will come. Request is सुधाकर जी, जस्ट एक और इसमें क्लैरिटी के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो डिफरेंट पैकेजिंग है ये क्या रिटेलर्स कर रहे हैं इसे, और क्या उनके ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए? ये एक्चुअली इसका हमने सोचा था, इसमें एक्चुअली solution is very simple. You will have to say that let's say the oil can be packed in 900 grams or
750 grams or 500 grams or 200 grams. So once it is frozen, then nobody will have a disadvantage because it will be then priced accordingly, and there's no probability of consumer getting misled, basically. एब्सोल्युटली। तीसरी चीज जो हमारी वो टैरिफ इम्पैक्ट को लेकर है, आपने साफ्टा की तो यहाँ पर बात की ही है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में टैरिफ कंसर्न्स हैं, और क्योंकि इंडिया अपना 60 to 65% ऑफ एडिबल ऑयल कंजम्पशन इंपोर्ट करता है, आप ये सारी कॉन्वर्सेशंस, ये टैरिफ प्लेज और ये ट्रेड कंसर्न्स कैसे रीड करते हैं? इंडियन एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर इसका क्या फर्क पड़ेगा और फाइनली कंज्यूमर पर? Yes. Manisha ji, I hope I've got an hour or so. Yeah? Okay. See, the tariff war in India and this impacts are really huge, as you can see. But we will restrict ourselves to the agri and probably edible oil sector. India is not exporting much of an oil except a little bit of mustard oil jata hai bas, and thoda bahut brands वगैरह जाता है. But I think overall India agriculture tariffs are about 39%, while USA at 5%. But there are many other edible oil में ज्यादा इतना फर्क इंडिया में नहीं है. But इंडिया के हिसाब से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट वाला आइटम्स लग रहा है, मैराइन, टी एंड जेम्स एंड ज्वेलरी एंड स्पाइसेस, not to some extent. People say spices is the big thing, but India exports about 37,000 crores of spices, of which only 2,000 crores is to US. Especially only turmeric, cumin, and chili. So I think in terms of positive impact, that is the Indian tariffs, counter tariffs, as against that has been imposed on other countries in Asia from where US imports. Those are opportunities for India, like rice, cashew, electronics. These are all opportunities for India. In terms of Indo-US issues are concerned, I think the talks, while the terms of trade are being discussed, it's not known whether India would open up GM, for example. I think we had definitely some statements saying that India does not want GM, and also there was some other statement from Niti Aayog. So GM, I don't think will actually easily fly. But US interest, from my point of view, I think it looks like more of corn that they would like to send to India, more of soybeans, which is a little bit unlikely because we ourselves are surplus in meal. And now that, as you are famously aware of the DDGS competition in DOC, soybean prices, soybean is unlikely. Soybean oil is a good item for Indian imports. You know that palm oils are very expensive today. Sun oil is also expensive. The cheaper soya can come from US. In fact, in the last few months, actually, India has become a major oil destination for US soybean oil. And I can tell you in a while why. But these tariff wars in India can definitely take more of US soybean oil, the quality of which is very good. And strategically, it is good for India to, expand the basket as against buying only from Argentina and Brazil and Russia. I think there will be one more origin, especially because, like I always said, that the soya is going to be the new palm in terms of prices. Palm is going into fuel. You're aware that the palm prices are no longer cheap. Palm is costlier. So that 3-4 lakh tons of, that is not small, that is 2.5 million tons of Indian vacuum due to high palm oil prices can actually attract more soybean oil. And that's where US context comes into place. But the global markets, if you are interested to know, which you are always are, I think the Chinese imports of beans are humongously affected because 26 million ton goes from US to China. So there is no other home to buy because China buys about 60-65 million out of 160 million production of Brazil. And so even Brazil cannot meet those requirements. So in the short term, the soybean complex will be in a different shape as far as beans are concerned. As far as palm oil is concerned, US imports about 1.8 million tons of palm oil, which is going to become humongously expensive after the tariffs. So I think palm needs India even more than ever because of this global. So I look at, and also not to talk about this biodiesel issue in US, which is curtailing canola and UCO and all these oils. So biodiesel program in US is going to be a decisive factor in terms of either Chicago values or soya complex.
I think these are a major realignment of trade flows in this tariff driven tensions, I would Concerns say. across globally. Overall, soft oils should get supported. Palm oil should look for demand away from Especially US. from India. Yes, especially from Sudhakar ji, India. So these are the global changes, very major, and it's always exciting to keep track of these things. So all the best I to you have also. to say सुधाकर जी, जो मैं क्वेश्चन लास्ट में पूछने वाली थी वो आपने पहले ही प्रीएम करके आंसर भी कर दिया. सो एज मच एज आई ट्राई टू रीड माय गेस्ट, आई थिंक आप अपने एंकर्स को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रीड करने लगे हैं. एंड एब्सोल्युटली आपसे बात करना एक मास्टर क्लास होती है. सो एन आवर आई होप वी कैन एब्सोल्युटली डू दैट समडे. बट थैंक यू सो मच साथ जुड़ने के लिए और उन सभी चीज़ों पर बात भी करने के लिए. बहुत शुक्रिया आपके समय का. वेल ये सुधाकर देसाई जी हमें बता रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें जो एडिबल ऑयल एज अ सेक्टर को इम्पैक्ट करती हैं ग्लोबली, इंडियन के तरीके से, और ऑफ कोर्स पॉलिसी चेंजेस कैसे चाहती है आईवीपीए, उसके ऊपर भी डिस्कशन. एडिबल ऑयल से मूव ऑन करेंगे और बात यहाँ पर अब सोने, चांदी और डायमंड्स की करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते अक्षय तृतीया है और सोने ने जिस तरह की हेडलाइंस 2025 में बनाई हैं शायद ही किसी और एसेट क्लास या किसी न्यूज़ ने बनाई हैं. हमारे साथ अब चेतन मेहता जी जुड़ चुके हैं लक्ष्मी डायमंड्स के. चेतन जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए. अगले हफ्ते अक्षय तृतीया है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी किस तरह की तैयारी है. नमस्कार मनीषा जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कितने दशक से इस गोल्ड को कितने करीबी से आप फॉलो कर रही हैं और इसकी जानकारी पूरे देश को दे रही हैं. उससे हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि आपको इतनी इंटरनल, हमसे भी ज्यादा आपको जानकारी, उसके लिए बहुत खुशी होती है. और अक्षय तृतीया तो जैसे आपको पता है कि अक्षय पात्र में सोना तो हमारे लिए कितना बड़ा, हमारे लिए एक पवित्र दिन है वो. और सब लोग कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा. मैं आपको अभी से बता दूं कि अक्षय तृतीया बहुत अच्छे होने वाली है. सब हमारे जितने भी लोग अक्षय तृतीया के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं. प्राइस गोल्ड का जो भी चैलेंज है ये कुछ दिनों का चैलेंज है. जैसे ये अभी स्टेबिलिटी पे आ चुका है, जैसे ये स्टेबल होगा, हो सकता है कि क्वांटिटी में कहीं ना कहीं कमी होगी. इसमें मैं आपको अभी से बता दूं कि क्वांटिटी में हम प्ले करे होंगे कि कम हो सकता है. बाकी अक्षय तृतीया सोने में, चांदी में और हीरो में बहुत अच्छा होने वाला है और लास्ट ईयर से भी बेटर ही होने वाला है. क्योंकि जब भी हमने हर लास्ट ईयर से उसके लास्ट ईयर से हमने कंपेयर किया तो अक्षय तृतीया बहुत बढ़िया गया और बहुत अच्छा चलने वाला. हो सकता है कि क्वांटिटी में हम कहीं ना कहीं मनीषा जी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं. बाकी प्रिपरेशन वाइज और सेल वाइज हम 100% श्योर और गारंटी है कि बहुत अच्छा सेल होगा मनीषा जी. चेतन जी, जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, और मुझे याद है लास्ट ईयर आपने मुझे समझाया था कि अक्षय तृतीया तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है और उसके बाद बाकी इंडिया ने इसे करना शुरू किया है. एंड इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप जो मैंने लास्ट ईयर यहाँ पर बैंगलोर में की थी. अब आप कहेंगे जिस तरह से सोने के प्राइसेस हैं, और साउथ इंडिया एक चीज़ बहुत बेहतरीन करता है कि वो सोना बहुत ज़्यादा खरीदता है, लेकिन क्या अब हम स्टडेड डायमंड्स यहाँ पर एक डाइवर्सिफिकेशन आता हुआ देख रहे हैं? हाँ, मैं अभी भी आपको बता दूं कि कुछ जनरेशन है जो प्लेन गोल्ड पे विश्वास रखती है, कुछ जनरेशन के चेंजेस में विश्वास रखती है और कुछ जनरेशन है जो मिक्स रखती है. तो जो स्पेसिफिक माइंडसेट है कि जिसको प्लेन गोल्ड लेना है वो प्लेन गोल्ड ही लेगा. लेकिन 100% डाइवर्सिफाई हुआ है. कुछ लोग 18 कैरेट में भी गए हैं, 22 में, 14 में भी गए हैं और काफी लोग डायमंड ज्वेलरी में भी चले गए, काफी लोग लाइट वेट ज्वेलरी में भी चले गए. तो डाइवर्सिफाई हो रहा है बिकॉज प्राइसेस बहुत हाई है. तो कहीं ना कहीं अपने अपने बजट में ज्वेलरी सबको बनानी है, कहीं ना कहीं वो बजट में उनको काम करना है, तो डाइवर्सिफाई होगा. लेकिन एक बता दूं कि सोना, हीरा, चांदी सदा के लिए रहेगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं. कहीं ना कहीं बहुत लोग जो टीवी में अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं कि भाई सोना कम होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वो होने वाला है. मैं आपको बता दूं कि चाहे सोना ऊपर हो या नीचे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है. इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कंज्यूमर को कहूंगा कि कोई भी मौका आप ना छोड़े, थोड़ा थोड़ा सोना आप खरीदा करें. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरा आप एक साथ खरीद ले, थोड़ा थोड़ा खरीदना कोशिश करें. तो जैसे भाव थोड़ा कम लगे तो थोड़ा और खरीदे, बढ़े तो खरीदे, तो एवरेज हो जाएगा. तो कल ऐसा ना हो जाओ कि कल आपके घर पे शादी हो और आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में आपको सोना खरीदना पड़े. तो आप अभी से तैयारी कर लें, कमर कस लें और परचेसिंग चालू कर लें. Well, absolutely. चेतन जी, हम काफ़ी सारे ब्रोकिंग हाउसेज इंडिया और इंटरनेशनल से बात कर रहे थे और सभी का जो कैलकुलेशन निकल के आता है वो यही है कि अगले 2-3 सालों में सोना 1.5 लाख के आसपास आपको बनता हुआ नजर आएगा. तो एब्सोल्युटली जैसे आपने कहा कि एसआईपी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर समय पे खरीदे रहें, और जैसे सोना की हिस्ट्री है वो क्लियरली आपको बताती है कि इसने रिटर्न्स हमेशा दिए हैं. चेतन जी, डायमंड्स पे एक सेंस लेना चाहेंगे, और मैं नेशनल डायमंड काउंसिल के डेविड केली आजकल बॉम्बे में आए हुए हैं, उनसे मिली थी, उनसे बात करी थी, और उन्होंने कहा था कि इंडियन डिमांड 5 से 10% सालाना अब वो यहाँ पर नेचुरल डायमंड्स में आता हुआ देखते हैं. आप ऑन ग्राउंड इससे कैसे रिएक्ट करेंगे?
नहीं, 101% मनीषा जी, जैसे लास्ट टाइम आपसे हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि प्राइसेस में थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी प्राइसेस स्टेबल भी हो गए और 5-10% प्राइसेस हाइक भी हो बड़े गए। भी हैं। और डिमांड भी ज्यादा होने वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आप डाइवर्सिफाई की बात कर रही है वो गोल्ड का डाइवर्सिफाई आपको डायमंड ज्वेलरी, कलर स्टोन ज्वेलरी में ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 10% से 15% हम इस साल डायमंड ग्रोथ भी दिख रहे हैं और प्राइस में भी एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की मार्केट डायमंड ज्वेलरी में बहुत बेटर कर रही है और डिमांड भी हो सकता है कि हायर वेट की ज्वेलरी की कमी है, लेकिन लाइट वेट ज्वेलरी की बहुत ज्यादा डिमांड है। हैवी वेट की ज्वेलरी भी, जैसे अभी शादी का सीजन आ रहा है और बहुत सारी शादियां हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो दिखेगी। लेकिन बढ़ोतरी है, लास्ट ईयर से इस साल हमको 10 से 15% प्राइस में भी और सेल में भी हमको बढ़ोतरी मिलेगी मनीषा जी। और मार्केट बहुत पॉजिटिव है डायमंड्स के ऊपर। चेतन जी, जहां पर डायमंड्स की बात है, कौन सा कैरेटेज आपको लगता है ज्यादा बिक रहा है? क्योंकि यूजली क्या होता है, 3, 4, 5 पॉइंटर्स अच्छे होते हैं और उसके बाद सीधा 2-3 कैरेट वाले अच्छे चलते हैं। एज ऑफ नाउ किस तरह का पैटर्न है? जैसे अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी में 1 to 6 सेंट्स या 6 to 10 सेंट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं ज्वेलरी में, क्योंकि आपको जब बड़ी ज्वेलरी बनानी है तो एक हीरा 1 कैरेट 2 कैरेट का आप बना के नहीं पहन सकते, तो करेक्ट। मल्टीपल छोटे छोटे हीरे की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में डिमांड मेले और +11 की होती है, जो सबसे ज्यादा वो साइज ज्वेलरी में यूज होती है। चाहे आप बंगड़ी भी ले लें तो 8 सेंट 9 सेंट 10 सेंट का ईच हीरो होता है, क्योंकि सब अफोर्ड, बड़ा हीरा सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 1 कैरेट का 2 कैरेट का, तो उसके एक निश कस्टमर अलग होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में स्मॉल साइज का चलन 90% 95% हमारा स्टार, मेले और +11 का साइज ज्वेलरी में जो यूज होता है उसका चलन ज्यादा है। 5% हमारे सॉलिटर्स, जैसे 50 सेंट 1 कैरेट 2 कैरेट 3 कैरेट, उसके निश कस्टमर्स हैं, उनका पेमेंट, उनका अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ज्वेलरी के डायमंड्स बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में यूज होते हैं मनीषा जी, छोटे वाले। चेतन जी, जहां तक डायमंड एस्पिरेशन की बात है, हम जानते हैं कि सिर्फ ये मेट्रोस तक सीमित नहीं है, Tier 2 Tier 3 सिटीज भी अब यहाँ पर डायमंड एस्पिरेशंस लेके चल रही हैं, खरीदारी हो रही है। किस तरह का टिकट साइज वहां से निकलता हुआ देखते हैं और वहां से कैसी ग्रोथ है? क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं एक नोस्पिन, ईयर स्टड और छोटा सा पेंडेंट सब घर में मौजूद है। पहले होता था कि हम सोना खरीद रहे हैं, सोना नहीं है। अब मेरे को लग रहा है कि सोने के साथ साथ सब घर में, आप अगर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में भी आप जाएंगी तो आपको कहीं ना कहीं पेंडेंट छोटा सा 50,000 से लेकर 1-1.5 लाख के रेंज के पास, सबके पास ये ज्वेलरी मनीषा जी अवेलेबल है आज की डेट में। और मैं आपको बता दूं, मेट्रो सिटी से भी ज्यादा 2 टायर 3 टायर डायमंड ज्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया कि नेचुरल डायमंड्स रेयर है और घर में हीरा होना चाहिए, बिकॉज हीरा शुक्र है और शुक्र सबके लिए शुभ होता है, वो एक प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, मेट्रो सिटीज में कहीं ना कहीं तो बहुत सालों से सेल्स है, लेकिन 2 टायर 3 टायर्स में सेल्स की 20 से 25-30% की बढ़ोतरी हुई है, बिकॉज लोग हीरे में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होने लग गए मनीषा जी अभी। एक फाइनल सवाल जाते जाते हैं चेतन जी, अब ये मैंडेटरी हो चला है कि हम अपने गेस्ट को पूछ ही लेते हैं कि आपको क्या लगता है गोल्ड के प्राइसेस इस साल के एंड तक कहाँ होंगे? मनीषा जी, मैं इतना गोल्ड का ना तो विशेषज्ञ हूं, ना मुझे गोल्ड की इतनी जानकारी है। मैं सिर्फ ये समझ रहा हूं कि गोल्ड कम नहीं दिख रहा है मुझे, आने वाले समय में गोल्ड ज्यादा ही होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ट्रेन छूट जाए उसके पहले डब्बा पकड़ ले और सब कंज्यूमर अपना अपना सोना खरीदना चालू कर ले। कोई किसी की बातों में नहीं आए। मैं आपको बता दूं, फ्यूचर गोल्ड का बहुत बढ़िया है और प्राइस बढ़ने ही वाला है। कोई नीचे आने का अगर करेक्शन भी हो तो ज्यादा करेक्शन नहीं लग रहा है मुझे। इसका कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि जिसके पास गोल्ड है वही एकदम किंग होगा इस वर्ल्ड का। तो जिसके पास गोल्ड है तो ना बैंक्स के पास कोई बेच नहीं रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि गोल्ड की कोई कीमतें कम आने वाली नहीं लग रही है मनीषा जी। बाकी इतना विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इन्वेस्ट करें और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके अपने घर में शादी का जितना ज्वेलरी बना ले, कोई मिस ना करे। ये मैं कहना चाहूंगा हमारे सभी कंज्यूमर्स को, सभी दर्शकों। वेल एब्सोल्युटली। और कहा तो ये भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो समय है, पीरियड है एज अ प्रेसिडेंसी, वो 4 साल का है। तो 4 साल तक तो गोल्ड नीचे नहीं आता। ये एक और कॉन्वर्सेशन है जो सब जगह यहाँ पर जारी है। चेतन जी, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, डायमंड पे, ज्वेलरी पे, गोल्ड पर और ऑफ कोर्स ओवरऑल मार्केट्स पे बात भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट्स, वो आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इन कमोडिटीज में क्या लेनी चाहिए। अपने साथ जोड़ेंगे गंगानगर कमोडिटीज के अमित खर्रे और HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए। अनुज, पहले सोने पर, उससे पहले तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, कहाँ लगता है आपको, कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? मनसा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, कल हमने इवनिंग में बड़ी गिरावट गोल्ड में आती हुई देखी। सेंटीमेंट थोड़ा सा लूज होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग रही है और साथ में चाइना के साथ जो थोड़ा सा एक कूलनेस के इंडिकेशन दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऑलरेडी काफी ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 95,380 पे लगा है।
टारगेट हमें लग रहा है कि 98,480 पे लगा है, टारगेट लग रहा है कि नीचे 95,380 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड रहेगा और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेट मी रिवर्स दिस क्वेश्चन एंड चेंज इट इन अ वे। अनुज, अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से सोने में कितने डालेंगे और चांदी में कितना डालेंगे? देखिए, हमें लगता है कि अभी करंट रेट के हिसाब से हमें लगता है कि 60 रुपीज चांदी में डालने चाहिए और 40 रुपीज हमें गोल्ड में डालने चाहिए, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशो की बात करेंगे तो सिल्वर अभी भी काफी अंडरटोन रहा है, तो यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंक्रीज होने की। तो यहाँ पर मैं 60 रुपए चांदी में डालना चाहूंगा और गोल्ड में 40 रुपए डालना चाहूंगा। रवि, आप क्या करेंगे? सॉरी अमित, आप क्या करेंगे? मैं सोने में 80 रुपए डालूंगा और 20 रुपए चांदी में डालूंगा। मैं मजबूत के साथ ही जाना चाहूंगा। ऑल राइट, ये काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग है। तो आपको क्या लगता है चांदी के प्राइसेस यहाँ से कहाँ जा सकते हैं अमित? सिल्वर मेरे को लगता है अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो अभी इनिशियल शॉर्ट टर्म में देखा जाएगा तो 1 से 2 दिनों में 98,500 से लेकर 99,500 के आसपास के टारगेट लगते हैं। ओवरऑल अगर देखें ईयर एंड की बात करें तो मेरे को लगता है अक्षय तृतीया जैसी आएगी, डिमांड इसमें भी बढ़ती हुई नजर आएगी और प्राइसेस मेरे को लगता है 1,07,000 के आसपास तक सिल्वर की टेस्ट कर सकते हैं। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं एंड अनुज, जिस तरह से हमने कॉपर में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर बनते हुए देखी है, आपको लगता है ये आगे जारी रह सकती है? और देखिए, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जारी रहेगी और हमें लगता है कि आगे भी पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। बट हाँ, अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। पिछले करीबन 15 दिनों से लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने कॉपर में आते हुए देखा था, तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो इंट्राडे के लिए कॉपर में मे कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं करीबन 861 में। स्टॉप लॉस जो है करीबन 866 का लगा है, टारगेट 852 तक देखा जा सकता है। तो इंट्राडे में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, बट हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी हमें लगता है कि कॉपर का पॉजिटिव रहेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो 870 875 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल पे एक नजर डालेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। अमित, यहाँ पर आपका क्या सेंस है? के लिहाज से 5350 मईवादा क्रूड ऑयल में खरीदारी ट्रेडर्स को करना चाहिए। इंट्राडे में देखा जाए तो 5490 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 5300 के नीचे का रहेगा। एक नजर यहाँ पर रुपए पे डालेंगे क्योंकि अप्रिसिएशन के बाद कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर है। अनुज, कोई सेंस करेंसीज को लेकर? हमें लगता है कि रुपये अभी स्टेबल रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कल हमने डॉलर इंडेक्स में लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी थी, बट हमें लगता है कि फिलहाल रुपये जो 85-86 की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आए। एग्रीकल्चर को कैसे देखते हैं अमित, और जिस तरह की उठापटक यहाँ पर है कि यहाँ पर एक सेफ ट्रेड लिया जा सकता है? हमें थोड़ी सी बिकवाली नजर आ रही है 5100 के नीचे। मईवादा ग्वार सीड में बिकवाली करके चले। अभी 1 से 2 दिनों का टारगेट 5000 का रखें। स्टॉप लॉस 5150 के ऊपर का रखें। वहीं पे ग्वारगांव में 97 के नीचे एक फ्रेश बिकवाली का मईवादे में ट्रेड बनाया जा सकता है। 94 के टारगेट रखें। स्टॉप लॉस 9950 के ऊपर का रखें। और खरीदारी की साइड अगर जाना है तो कुक्कुड़ वायदा 2950 के आसपास का भाव है, इसमें खरीदारी करें। 2900 का एसएल लगाएं। 3050 तक के टारगेट कुक्कुड़ में देखने को मिल सकते हैं। क्रूड की हमने बात की, लेकिन नेचुरल गैस यहाँ पर छूटा है और अनुज, इसे कैसे देखते हैं आप? और देखिए, नेचुरल गैस में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड का इंपैक्ट रहेगा। डिमांड अभी यहाँ पे वीक हो सकती है, और जिस तरीके से क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं, हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। तो नेचुरल गैस में करीबन 260 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 267 पे लगाएं, टारगेट 250 तक देखा जा सकता है। हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी स्टेबल मूवमेंट आती हुई दिखाई दी है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में रहेगी। ओके, आप दोनों के पास आना चाहूंगी इससे पहले कि हम कार्यक्रम खत्म करें, और आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल के अंत तक आपको क्या लगता है सोना कहाँ होगा? अमित, सोने का जैसा कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक चार्ट स्टडी कर रहा था, तो इसका जो मेरे को रेंज अब नजर आता है, नीचे में 94-92 का इसका बेस रहेगा और ऊपर में मेरे को लगता है 1,07,000 से लेके 1,12,000 के आसपास के भाव जो है सोने में एंड तक देखने को मिल सकते हैं। अनुज, आपकी क्या सेंस है? हमें लगता है कि अगेन हम 3500 के ऊपर के लेवल देखेंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3700 तक की डॉलर तक की भी लेवल देखे जा सकते हैं, जो कि एमसीएक्स में करीबन 1,01,000 1,02,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो जहां तक सोने की बात है, वो थोड़ी सी करेक्शन के बाद यहाँ पर फिर से रिबाउंड है और ऑफ कोर्स करेक्शन शायद यहाँ पर आती भी रहेंगी, लेकिन इस साल के अंत तक आपको सोने के प्राइसेस यहाँ से काफ़ी ऊंचे मिलने वाले हैं। हमारे दोनों ही गेस्ट लाख प्लस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ पर ढूंढते रह सकते हैं। अमित एंड अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और बात करेंगे आवाज़ समाचार पर।